یہ فرض نماز کا وقت آ گیا ہے، زور ہے، یہ واجب علی تراخی نہیں ہے، واجب علی الفور ہے، اسی زور میں وہ نماز پڑھیں گے تو بعد میں قضا پڑے گا. لیکن حج جس وقت بھی کرے قضا نہیں ہوگی، وہ اس وقت اس کا ادا ہوگا. اس کا نام ہے واجب علی تراخی. یہ علماء اصول کی بولی کے الفاظ ہیں. جب کبھی گفتگو کی جائے ان الفاظ کو یاد رکھا جائے، سننے والوں پر خوشگوار اثر ہوگا کہ اس آدمی نے سنی سنائی بات نہیں کی، اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں جاننے والا آدمی ہے. یہ 6 سال ہجرت میں فرض ہوا تھا. امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 سال کا ذکر کیا ہے، لیکن 6 سال میں فرض ہو کر اگر واجب علی الفور ہوتا تو اسی سال حج کرنا فرض ہوتا. لیکن وہ حج کی فرضیت ثابت ہو گئی. ادائیگی کے لیے 9 سال ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک کے قیادت میں قافلہ تیار کیا گیا جو حج کرنے گئے تھے. تو اس کا نام ہے واجب علی تراخی. تو جس وقت آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو 2 چادریں سفید رنگ کی، اگرچہ بعض طبقات نے کسی رنگ کی چادر کو بھی جائز لکھا ہے، لیکن صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں چادریں سفید ہوں، ایک کمر کے ساتھ باندھ لی جائے اور دوسرا اوپر کندھوں پر ڈالی جائے. لیکن اس عرصے میں جب وہ حج کی نیت کر لے، سر کا ڈھانپنا اس کے لیے ممنوع ہوگا. کل کے لیکچر میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی، یہ محبت کا ایک کورس ہے جس میں دیوانوں والی شکل بنانی ہے. تو وہ پورا جوتا بھی نہ پہننا، سر بھی نہ ڈھانپنا، جرابیں بھی استعمال نہ کرنا، ایسا جوتا بھی استعمال نہ کرنا جس کی ایڑی سلامت ہو. یہ ایڑی نیچے زمین پہ لگتی ہے، وہ بے شک ایڑی لکڑی کی و لوہے کی استعمال کر سکتا ہے، لیکن بندے کی اپنی ایڑی جو ہے وہ ننگی رہنی چاہیے. یہ دیوانوں کا لباس ہے. آج اس کی دیوانگی ظاہر کرنی ہے، اور اس جگہ اقراض ہے. پوری دنیا میں لوگوں کو متحد کرنے کا کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس تاریخ لوگ شکل میں، صورت میں، لباس میں، لب و لہجہ میں ایک ہی ہوں. جس وقت آدمی کپڑے پہنے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی پاکستان کا ہے، ہندوستان کا ہے، یہ آدمی جرمنی کا ہے، یہ آدمی ملیشیا کا ہے، ترکستان کا ہے. کپڑوں کے پہننے سے کافی تمیز ہو جاتی ہے. ہم لوگ مدینہ طیبہ ہوتے تھے تو اس وقت ترکیہ کو دیکھا. ترکیہ جسے لوگ پتلون کے اندر کرتا ڈال لیتے، وہ شلوار کے اندر کرتا ڈال لیتے تھے. تو شلوار کے کرتے کو اوپر پہنے ہوئی دیکھ کے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ترکیہ کا رہنے والا ہے. اللہ حضرت کیا. اسی طرح حبشہ کے رہنے والے لوگ یا سوڈان کے رہنے والے لوگ، جس وقت وہ کپڑوں کا ایک خاص سٹائل تھا، ان کو دیکھتے پتہ چل جاتا تھا. مگر اسلام نے بتلایا ہے کہ میں پوری قوم کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں. کیا طریقہ کار ہے؟ کہا حجامتوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے. حجامتیں بنی ہوئی دیکھے بندہ پہچان جاتا ہے. تو آج کے بعد حجامت نہیں بنانی، تم نے اسی طرح رہنا ہے. اور دیوانوں کی یہ عادت ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، نہ مارتے ہیں نہ نکالتے ہیں. تم نہ انہیں مار سکتے ہو نہ نکال سکتے ہو. دوسرے پر جوں چلتی ہوئی دیکھو، اشارہ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ پکڑ کے مار ڈالو. اللہ حاضر قیاس. اسی طرح خواہشات نفسانی میں سے ایک بات ہے شکار کھیلنا، شکاری کی امداد کرنا. کہا نہ شکار کھیل سکتے ہو، نہ شکاری کو شکار کی طرف اشارہ کر کے بتلا سکتے ہو. مطلب یہ کہ ہم نے یہ تعریف کی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی انسان محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے. آج صرف مسلمان محفوظ نہیں، آج جانور بھی محفوظ رہنے چاہیے تاکہ دنیا کو سبق ملے کہ اچھے اسلام کی پوزیشن یہ ہے. اچھا اس وقت انہوں نے کرنا کیا ہے؟ پہلے غسل کر لو. اگر غسل کے لیے اسباب نہیں ہے یا کوئی عذر مانے ہے، بیمار ہے، غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے یا ہلاکت کا ڈر ہے تو پھر وضو کر لو. یا کوئی ماں بہن ہے ایام عذر میں ہے، اس کو وضو کرنے کا چانس نہیں بنتا تو پھر ایسی صورت میں وضو کر لو. مرد احرام باندھے 2 چادروں کے ذریعے سے، ایک کمر کے ساتھ باندھ لے، ایک کندھوں پہ ڈال لے. سر کو نہیں ڈھانپنا، لیکن ایک ہے استباع، وہ ایسا ہے کہ بائیں کندھے پر سے چادر پھیلا کے دائیں کندھے کے نیچے سے گزارنا. لیکن یہ عین طواف بیت اللہ کے وقت یہ مسنون ہے، طواف بیت اللہ کے سوا یہ مکروہ ہے. تمام آدمیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ہم نے کبھی ذمہ دار بندوں کو دیکھا ہے، نام نہیں لینا چاہتا، مگر پڑھے لکھے ملک کے سربراہ دیکھے جن کو یہ پتہ نہیں ہے. انہوں نے مدینے سے ہمارے سامنے احرام باندھا اور وہاں احرام باندھنے کے بعد استباع کر لیا، یعنی بائیں کندھے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر گزار کے بائیں کندھے پر ڈال لی، ہمارے سامنے نفل پڑے. اور کسی بندے کو کہا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، صرف طواف کی حالت میں یہ درست ہے. اور طواف کی حالت میں درست کیوں ہوا؟ اس کی بھی وجہ تھی. جس 6 سال ہجرت میں عمرہ کرنے گئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر سرکار کو میں آپ کے رفقائے کار کے روک لیا گیا تھا اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تھا. اس وقت سرکار کے صحابہ نے جو قربانیاں کی لے کے گئے تھے، وہاں قربانیاں کی، احرام کھول دیے، حضور کے حکم کے مطابق واپس آ گئے. دوسرے سال کے مطلب طے شدہ تھا کہ دوسرے سال اگر آپ لوگ طواف بیت اللہ کرنے کے لیے آئیں، عمرہ قضا کرنے کے لیے، تو تمہیں اجازت، ہم تم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. جس وقت یہ لوگ
मकाम तनीम के करीब पहुंचे। मकाम तनीम चंद मीलों के फासले पर है एक जगह, यहाँ से एक आदमी मक्के गया हुआ है, उम्रा करना चाहता है, तो फिर उम्रे के लिए इहराम बांधेगा मकाम तनीम से। उसके करीब पहुंचे, कुफार ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि महबूब किबरिया अलैहिस्सलाम के यारान जान निसार वो जंगलों की जिंदगी उन्होंने इख्तियार की है, क्योंकि शहरों के रहने वाले थे और जाकर जंगलों में आबाद हुए जहाँ जिंदगी की सहूलतें नहीं हैं। तो इस वजह से उनकी सेहतें खराब हो गई हैं, चल फिर नहीं सकते, चलते चलते टांगों में टांगें चल जाती हैं और सीधे होकर चल नहीं सकते। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जो अल्लाह ताला की दी हुई बसीरत है, जो उसकी तरफ से इत्तलाआत है, उनके मुताबिक सहाबा को आगाह किया कि इस वक्त कुफार के यहाँ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मुसलमान बीमार हैं, कमज़ोर हैं, चल फिर नहीं सकते। तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जिस वक्त तवाफ़ बैतुल्लाह करने लगेंगे उस वक्त आपका तमाशा देखने के लिए कुफार आए हुए होंगे। जो शिमाल की तरफ निसफ दायरे की मानी एक जगह है जिसका नाम है हतीम, तो हतीम में आकर के तमाशे के लिए वो लोग बैठ जाया करते थे। लेकिन ये काबतुल्लाह का हिस्सा है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ तामीर किया था, या उनसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, तो हतीम काबे की बुनियादों में एक दीवार थी, तो उससे शामिल करके काबा की इमारत तस्लीम होती थी। इसलिए हाजी के लिए हुक्म है कि उस हतीम के बीच में से न गुजरे, तवाफ करने के लिए उसको अपने तवाफ के अंदर ले, कि जब वहां जाओगे तो उस शमाल की तरफ कुफार बैठ के तमाशा देखेंगे। मगर जिस वक्त तुम हजर असवद के करीब पहुंचो, पहले अकड़ के चलो या ना चलो, लेकिन वहां अकड़ के चलना है। और करना क्या है, वो इस्तेमाल करना है, यानी दाएं कंधे के नीचे से चादर गुजार के तो बाएं कंधे पर डालिए ये कंधा, ताकि तुम्हारे पैक्स नजर आए, अपर आर्म नजर आए, और ये तुम्हारा फोर आर्म नजर आए। जितनी बोगस बाडियां होती हैं कपड़ों में से नजर नहीं आती, बनी हुई बाडियां जो हैं उनके लिए कपड़ों में से गुजारा नहीं हो सकता। आप देखते पहलवान जब मैदान में आते हैं तो कपड़े पहने हुए होते हैं, तो उनकी बाडी पहलवानों की तरह नजर नहीं आती। जब कपड़े उतारते हैं तो पता चलता है ये पहलवान है। इसका मकसद क्या था, कुफार पर रोब डालना। ये जुलूस का सबूत भी है। जिस वक्त हम लोग मिलाद नबी का जुलूस निकालते हैं या और हम जुलूस निकालते हैं, उससे मुराद ये होती है हम किसी को गाली नहीं देते, देखो हम इस अकीदे के लोग इकट्ठे हैं। जब हमने शुरू में मिलाद नबी का जुलूस निकाला तो काली भेड़ें हर लेवल में होती हैं। उस वक्त हमारी कमेटी में चंद बंदे ऐसे थे जो उधारे किस्म के थे। उन्होंने कहा कि अगर आप जुलूस निकालेंगे तो हमला हो जाएगा, फसादात बच जाएंगे। मैंने कहा तुम तमाशा देखो, हमें निकालने दो। कलमा पढ़ने वाला कैसे फसाद करेगा, कोई पक्का बेईमान है तो फसाद करेगा। तो अगर पक्का बेईमान है तो हम उसका हिसाब कर लेंगे। तो हम रोजाना तकरीरों के लिए जाते, नूर पर तकरीरें होती, इल्म गैब पर होती, निदाए हाज़िर गायब पर होती, या रसूलुल्लाह पर होती, औलिया अल्लाह की किरामात पर होती, गौसे पाक के पहुंचने पर होती, औलिया अल्लाह को पुकारने के बारे में होते। जगह जगह झगड़े होते। हमने कहा हम तदबीर करते हैं जिसमें आले सुन्नत अलग हो जाए। हमने मिलाशी का जुलूस निकालना चाहा, हमें पूरा यकीन था नूर का मुनकर इस जुलूस में नहीं आएगा, और या रसूलुल्लाह कहने का मुनकर इस जगह नहीं आएगा, गौसे पाक को पुकारने का मुनकर इस जगह नहीं आएगा, और औलिया अल्लाह की किरामात का मुनकर नहीं आएगा। तो इस जरिए से सारे सुन्नी निकल के सामने आएंगे और हम कहेंगे हम इस तबके के लोग हैं, तुम हमें फिरका कहते हो, फिरका तुम हो, तुम इतना जुलूस बना के दिखाओ। हम उनका इस दफा तो सोडा वाटर का जोश है, फिर ये नहीं होगा। लेकिन हर आने वाले साल में, गुजरे साल के मुकाबले में बंदे बढ़ते चले गए। तो एक जुलूस के जरिए से हमारा मसला हल हो गया। सरकार ने फरमाया कि अकड़ का चलना है, लेकिन कंधा नंगा रखना है, ताकि तुम्हारे पैक्स नजर आए, शोल्डर नजर आए, अपर आर्म नजर आए, फोर आर्म नजर आए। तुम्हारे पट्टे देख के तो दुश्मन घबराएगा। अकड़ अकड़ के चलना है। हालांकि अकड़ का चलना कुरान की रूह से मना है। कुरान कहता है ला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। जनाब लुकमान अपने बेटे से कहते, बेटे जमीन पर अकड़ अकड़ के मत चलो, तुम्हारी जमीन पर हैसियत क्या बनती है। जैसे चींटी चलती है तो जमीन का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारे चलने से भी कुछ नहीं बिगड़ता। ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की चोटियों को पहुंच सकते हो। इसलिए बंदे बन के चलो। तो हमारे सूफिया ने लिखा है अकड़ के चलना शिरके खफी है, ये आराम है। तो इस जगह हर जो गिरत कामिल मिल्लत शवद, हर के गिरत इल्लत शवद। रूमी फरमाते हैं बादाम रोगन सारे जहान को फायदा देता है, तरी लाता है, लेकिन टीबी के मरीज को आप खिलाएं खुश्की लाता है। क्यों, उसके मैदे में जो बगावत है। इसी तरह या रसूलुल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अज़मत के नारे तरी लाते हैं, लेकिन जिसके मैदे में बुग़्ज़ रसूल की टीबी है वो उस आदमी को खुश्की बढ़ती है। जो नारे मारे तो खुश्की बढ़ती जाती है। तो ये ऐब है ना। रूमी फरमाते कामिल मिल्लत शद, कामिल जिस चीज को इख्तियार कर ले वो गुनाह नहीं रहता, वो मजहब बन जाता है। देखें हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमजान शरीफ में अपनी अहलिया से जिनसी इख्तिलात कर लिया, जो उस वक्त के एतबार से ममनू था। उस वक्त रोजे की कैफियत ये थी, बंदा सो के जागे तो रोजा शुरू हो गया, तरावीहें पढ़ के आए तो रोजा शुरू हो गया। तो आप तरावीहें पढ़ के आए, अपनी खातून से बात की, उन्होंने कोई माजरत चाहिए लेकिन तस्लीम न की, इख्तिलात जिनसी कर लिया, ये खता थी, खता हो गई। हुई किससे, जनाब फारूक आज़म से। वाह खूब हज़रत फारूक आज़म तेरी शान पर कुर्बान,
बारगाह रिसालत में तेरी कितनी बड़ी शान है। सुबह के वक्त सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, रोने लगे। सरकार में मायूब की कि या उमर, और उमर तुम्हें कौन सी चीज रुला रही है, इन्हें तेरे रोने का सबब क्या है। उन्होंने रात का वाकया बयान किया। सरकार चुप हो गए। इस जगह यारों ने ये माना कर लिया, सरकार का इख्तियार होता तो सरकार कहते चलो माफ है, लेकिन उनके चुप होने की वजह मुझे मालूम है। उनका माफ करते सिर्फ इसे माफ होता, सारे जान को माफ ना होता। चुप रहे। जब सरकार की तबीयत पर जरा तकद्दुर महसूस किया गया, यानी सरकार की तबीयत जरा परेशान हुई, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, ऐ मेरे यार परेशान होने की जरूरत नहीं। उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ऐ मेरे महबूब, तेरे यार ने जो काम किया है ना, इस गुनाह का जीवन में गुनाह के लिए इसमें हम उसका जिक्र ही नहीं करते। इस गुनाह को गुनाहों की फहरिस्त से उड़ा दिया। फताबा अलैकुम वाफा अन्कुम, मुझे पता पहले भी ये काम करते रहे हो, लेकिन दूसरों ने जाहिर नहीं किया, हमने बगैर तौबा के उनको माफ कर दिया। इसकी वजह से अब उमर ने यह काम किया। हर गिरद कामिल मिलत शवल, कामिल किसी मास्कियत को इख्तियार कर ले तो मास्कियत बास्कियत नहीं रहती, वो नेकी बन जाती है। अब वो नेकी बनी कि ना बनी, बीवी मियाँ का ताल्लुक शरी तौर पर मुस्ताहब तस्लीम होता है, बाद रात में मसनून तस्लीम होता है, बाद रात में फर्ज तस्लीम होता है। तो वो किसने किया? फारूक आज़म ने किया। कहा ऐ मेरे यार, तुझे पता है दाना गंदम खा लिया था आदम अलैहिस्सलाम ने, हमने कपड़े उतार लिए थे, बीवी मियाँ ने सेपरेशन कर दी थी और एक्साइल कर दिया था, वतन से निकाल दिया था, जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरा के भी दोनों को इकट्ठा नहीं छोड़ा, एक को जद्दे में गिराया, दूसरे को जाके वहां सैलान में गिराया, तो दोनों को जमीन पर आकर भी सेपरेशन कायम रही। 300 बरस तक वो दुआएं करते रहे, तौबा करते रहे, मंजूर नहीं। कुर्बान जाए तेरी जुल्फ़े ताबदार के, तेरी जुल्फ़े ताबदार के जो कैदी हैं, जुल्फ़ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं, जब मिसले माही बन गया तकबीर की हाजत नहीं। अब जिन लोगों ने सरकारी दो आलम अलैहि सलाम की जात पाक के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, देख उसकी कीमत, वही खुदा है जिन्हें दाना गनम खाने पर बीवी में सेपरेशन की, एक घर से निकाल दिया, 2 वतन से निकाल दिया, 3 और उसके बाद जमीन पर भी उन्होंने सेपरेशन कर दी। 300 बरस तक तौबा करते रहे, तौबा मंजूर नहीं। वही खुदा हूँ, आज उससे ज्यादा संगीन काम करके आया है हज़रत उमर, मगर आया तेरा यार बन के है। इससे पहले कि एक आयत उसका भी सादती का लिया जाए, माना को ज्यादा अच्छा इवकार मिलता है। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत अद्दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपसे मेरे मतलब लोग सवाल करते हैं कि वो करीब है या बईद है, हमारी दुआएं सुनता है कि नहीं सुनता। मैं सबकी दुआएं कबूल करता हूँ, जो मुझे बुलाएं उनको चाहिए कि मुझ पर ईमान लाएं और मेरी बारगाह में आजिज़ी करें और मेरे अहकाम को पाबंदी के साथ अपनाएं ताकि वो हदायत पर आ जाए। एक जलसे पर गए हुए थे, एक मौलवी साहब ने तकरीर की, उनका बिकाफिन अबदा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? उनका इसका मतलब यह है कि वलियों से क्यों दुआएं कराते हो, उनका वसीला क्यों पकड़ते हो? कुरान ने तो बताया मैं अपने बंदों के लिए काफी हूँ, तो आप इसकी वजह बताएं। जब खुदा काफी है तो फिर दूसरे के पास क्यों जाते हो? और मौलवी साहब जाने लगे, मैंने उनको दामन से पकड़ के बिठा लिया। मैंने कहा आपने जो कुछ भी कहा है ना, मैंने सुना है, मैं मजलिस के दौरान बोला नहीं हूँ, इसलिए मजलिस खराब होती थी। आप बैठ के मेरी बातें सुने, उसके बाद अगर आप पे जान है तो मेरे साथ बात करें। ये ठीक है कि अल्लाह अपने बंदे को काफी है, लेकिन अल्लाह की तवफ़्फ़ल मौत, अल्लाह ताला बंदों को अपनी मौत के वक्त मारता है। और कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुकिला बिकुम, बताओ मलकुल मौत फिर मारने के लिए क्यों आता है? जब खुदा खुद मार सकता है, मारता भी है, तो मलकुल मौत क्यों आता है? तो मालूम है किसी काम के करने में रिप्रेजेंटेशन भी मुमकिन होती है। इस जगह ये आयत मैंने पेश की। मैंने कहा जब बंदे मुझसे सवाल करते हैं कि दुआ करते हैं, मैं सबकी सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, मगर मैं पूछता हूँ इसके साथ मुत्तसिल ये आयत है, उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफसु। इस बात के माना जनाब उमर ज्यादा अच्छी तरह समझे थे या आप ज्यादा अच्छी तरह समझे हैं? अब जनाब वो घबराए, मौलाना उठना चाहे, मैंने कहा पकड़ के बिठाओ जब तक मेरा बयान खत्म नहीं होता। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आप सारी बातें सुने। अब जनाब उमर ने यह आयत सुनी हुई थी, उनको पता था, फिर उसके बाद वो हजूर की बारगाह में दुआ कराने के लिए क्यों गए? सबसे बेहतर पता तो नबी पाक के सहाबा और आले बैत को है। अगर उन्होंने आपके मुताबिक अमल नहीं किया बल्कि हमारे मुताबिक अमल किया, तो हमारा अमल फिर सहाबा और आले बैत के मुताबिक है। और ये बात फिर समझे एक मरतबा, जो आपने कहा अल्लाह अपने बंदों को काफी है। कुरान मजीद ने कहा ऐ मेरे महबूब हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ऐ मेरे महबूब अल्लाह आपको काफी है और ये ईमान वाले जो हैं ये आपको काफी है। मौलवी साहब बोले, कहने लगे ये तर्जुमा गलत किया है, अल्लाह आपको भी काफी है और आप पर ईमान लाने वालों को के लिए भी काफी है। मैंने कहा ये बात जो आपने कही है, मैं अटकल पचू मारा है, कवायद की रूह से ये तर्जुमा हरगिज़ मुमकिन नहीं। पहली बात यह है कि ये मुआफ़क़ात उमर में से है। जनाब उमर ने कहा था या रसूल बाहर निकल के बातें करते हैं, पर्दे में बातें नहीं करते। सरकार वाना कलीलून वल काफिरून कसीरून, हम थोड़े हैं काफिर ज्यादा हैं, इसलिए बाहर नहीं जाते। उनका हस्बुकल्लाहु व अना या रसूल, या रसूल आपको अल्लाह काफी फिर मैं काफी हूँ। सहाबा को गिरान गुजरा के काफी होने में सिर्फ अपना नाम क्यों लिया है? 6 सालों के मारे हम खाते रहे, 6ठे साले नबूवत में वो ईमान लाए थे, 6 साल हुए मारे खाते हुए, आगों में जलते हुए,
पत्थरों के नीचे पिसते हुए, तो ये आज या अभी कहता मैं काफी हूँ। अगर वो माना किया जो आप करते हैं तो हजरत उमर के मौक़ात नहीं बनते। उनका मौक़िफ़ क्या था, अल्लाह काफी है, मैं काफी हूँ, अल्लाह के सिवा वह अना वाह आया अथवा, अल्लाह काफी और मैं। इसे उनके जुमले में तरमीम की रब ने कहा, ये जो सिर्फ अपना नाम लिया है ये ठीक नहीं है। वो मनी तबाका मिनल मोमिनीन, तेरे सिवा जो ईमान लाए हैं वो भी काफी है। ये तो जवाब है इस लिहाज से कि फन तफसीर की रूह से ये मुवाफ़क़ात उम्र में से है। मुवाफ़क़ात उम्र में उस वक्त बनेगा जिस वक्त के हजरत उमर के कौल का लिहाज रखा जाए। तो दूसरा नावी जवाब है, क्या कायदा है इसमें ज़मीर पर, इसमें ज़ाहिर का अतफ उस वक्त होगा जब ज़मीर का ज़मीर से तकरार किया जाए। अगर ज़मीर का ज़मीर से तकरार न किया जाए तो फिर अतफ जायज़ नहीं होगा। ये हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, आपने जो तर्जुमा किया है अल्लाह आपको काफ़ी है और उनको भी काफ़ी है, ये मन का अतफ अगर का पर हो तो ये माना बन सकते, लेकिन कवायद की रूह से उसका अतफ बन सकता नहीं, क्योंकि का इसमें ज़मीर है, मन इसमें ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर का इसमें ज़मीर पर अतफ उस वक्त होगा जब हस्बुकल्लाहु अंता व मन, अगर अंता बाद में होता फिर अतफ दुरुस्त होता। ये नावी तौर पर ऐसा पेचा है, ये मज़ाहिब खिलाफ बसरीयीन वल कुफिय्यीन उसके दरिया में मसला मौजूद है। नावे की इंतहाई किताब है, मेरे कुतुब खाने में सब मौजूद है। सुनी सुनाई बात नहीं करता, मैं समझता हूँ कि जिन दुश्मनों के सीनों में मेरी तहकीक खटकती है, चुभती है, रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी बेहुदा बातें करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो बातें मैं करता हूँ उनका सबूत फन के रूप से भी मैं पेश करता हूँ। अल्लाह का फजल है। अब साबित हुआ अल्लाह भी काफ़ी है, अल्लाह वाले भी काफ़ी है। इसका जवाब लो अब जनाब। मैंने कहा नावे का कायदा पेश किया, आप इसके मुकाबले नावे का कायदा पेश करें और इसकी मिसाल पेश करें। न कायदा पेश कर सकते हैं न मिसाल पेश कर सकते हैं। तो अब जनाब वापस आते हैं तवाफ़ बैतुल्लाह पर। ये अकड़ अकड़ के चलते हैं और अकड़ के चलना गुनाह है, और गुनाह काबे शरीफ में जाके ज्यादा गुनाह बन जाता है। अगर मक्के शरीफ में एक नेकी की जाए लाख नेकी का स्वाब भी है, अगर एक बदी की जाए तो 1,00,000 बदी का अजाब भी है। तो गुनाह हो, गुनाह भी ऐसा शिर्क की किस्म का हो, करे मक्के में नहीं काबे के पास, और फिर उस पर स्वाब की उम्मीद करे, ये किसका फैसला है? ये मदीने वाली सरकार ने बतलाया। जब बेईमानों से वास्ता पड़ जाए तो तुम अपने पोजीशन को शो ऑफ कर सकते हो, अपनी पावर को डिस्प्ले कर सकते हो। इस जगह नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा ने कंधे नंगे करके दाने तो अकड़ के तवाफ किया। इससे क्या साबित हुआ कि जुलूस को भी इसी मकसद के लिए निकालते हैं ताकि दुश्मनाने दीन जो इस्लाम के हकायक हैं उनका इनकार करते हैं, उनको पता चल जाए हम फिरका है, ये सुन्नी जो है जिनको हम बिदती कहते हैं बिदती नहीं है, ये असल में सुन्नी है। और इसका दूसरा सबूत आज के एक मौके और पर भी मौजूद है। जिस आदमी मीना से तवाफ़ ज़ियारत के लिए, जिसको तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं, तवाफ़ ज़ियारत भी कहते हैं, वो मीना से एक मरतबा तवाफ़ करने के लिए मक्के शरीफ में आता है। एक वादी है जो काफ़ी खुली है, उसको बतने मुहस्सब कहते हैं। बतने मुहस्सब में आकर बैठना तमाम हाजियों को हुक्म है, कोई नफल नहीं पढ़ने, कोई विर्द वज़ाइफ नहीं करने, सिर्फ बैठना। और क्या है वो सुन्नत है। कैसी सुन्नत है? जिस कुफ़ार मक्का ने सरकार के साथ बाइकाट का मुआहदा किया था, तमाम हिजाज को इकट्ठा किया था कि सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम की जमात के साथ ना हाथ मिलाना है, ना सौदा बेचना है, ना सौदा खरीदना है, ना उस खानदान की बेटियों के साथ निकाह करना है, ना अपनी बेटियां उनको निकाह के लिए देनी है, रास्ते में मिले तो सलाम दुआ भी नहीं करनी। मुकम्मल बाइकाट, सौदा खरीदने के लिए पैसे दे, उनसे पैसे नहीं लेने, सौदा नहीं बेचना। उस वक्त इस जगह इकट्ठे हुए थे क्योंकि काबे शरीफ का सेन, काबे शरीफ का एरिया तमाम हिजाज को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए उनको महसूस हुआ कि बतने मौसम में अगर इकट्ठे हो तो ये जगह बकदरे काफ़ी है, सारे आकर इसमें बैठ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से अकोमोडेट हो सकते हैं। ये क्यों कि जिस जगह उन्होंने अपनी पावर डिस्प्ले की थी, तुम हज पर आए हुए हो, आज एक पंथ दो काज, एक मतलब तीर गिराने से दो निशाने हो गए, हज भी हो गया और मुनकरों की छाती पर गर्म पत्थर भी रखे गए। इस जगह सारे आके बैठो, ये सबूत है जुलूस निकालने का। एक काबतुल्लाह का तवाफ और अकड़ के चलना, और वो अकड़ के चलना था ही मना का, वो आज मना भी नहीं है और सिर्फ मना सिर्फ जायज नहीं सवाब है। आज जो अकड़ के चलेगा खुदा ताला उसकी शान बुलंद रखेगा, वो क़यामत तक के लिए वो तरीक़ाकार जरूरी बन गया। अब बात समझ आई कि ना आई? अल्लाह वालों की अदाएं जो हैं वो किसी तरह मनसूख नहीं होती, कायम रहती। जो सफ़ा मरवा के दरमियान जाके मिलान अक्सरैन के दरमियान दौड़ लगाते हो, औरत को बाज़ दौड़ना मकरूह भी है, लेकिन वहाँ कार्य सवाब है। क्यों सवाब है? माई हाजरा दौड़ के गुजरी है, तो इससे मतलब बूढ़े हों या जवान हों, अपाज हों, चल सकते हों तो उनको तेज तेज वहाँ से चलना चाहिए, और अगर नहीं तो कुर्सी पर उनको बिठा के गए तो तेजी से वहाँ से चलना चाहिए ताकि वो जॉगिंग वाली सुन्नत जो है वो अदा हो जाए। तो आज तक कोई शायर अल्लाह में से है। शायर किसको कहते हैं? शायर शहीरत उनकी जमा है, अंग्रेजी में शहीरत उनको अंग्रेजी में कहते हैं एमिनेंसेस, अल्लाह की निशानियाँ। यार वो पहाड़ी है, कोई उमाला अल्लाह की निशानियों में से नहीं है।
वो पहाड़ियां क्यों अल्लाह की निशानियां बन गई हैं? कहा कि कोई हमारा पर किसी अल्लाह वाले ने कदम नहीं रखा, इसलिए वो अल्लाह की निशानी नहीं बने। वो सिर्फ पहाड़ है, उस पर चढ़ने उतरने का ना सवाब ना अजाब, मुबाह है। लेकिन इस जगह जो जाएगा दौड़ेगा, उसको जाने का भी सवाब है, दौड़ने का भी सवाब है, जितने फेरे लगाएगा उतना ही सवाब है। वजह क्या थी? का एक पैगंबर का मिशन था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके बदन से पैदा हुए थे, आप कई दिनों के फाके की वजह से, प्यास की वजह से, ना खाना ना पानी। आज आप लोग सीखें नबियों की जिंदगी से, सबक सीखें। ये कौन सी बीवी है? खामद रोजाना आते थे और चले जाते थे, बुराक पर आते थे, शाम को वापस चले जाते थे। लेकिन बीवी नहीं पूछती थी, खाना नहीं है, पीना नहीं है, पानी नहीं है, जिंदगी की सहूलतें नहीं है, छोड़ के जाते कहाँ हो? एक दिन मियाँ वक्त पर घर पर आए, दूसरे दिन अदालत में केस फाइल कर देते हैं कि मेरा खामद डिजर्शन करता है, मुझे छोड़ छोड़ के भागता है, मेंटेनेंस नहीं देता, खर्चा नहीं देता। उसको अदालत पाबंद कर लेती है कि तुम कुछ कमाओ या जो कुछ भी करो, लेकिन खर्चा तुम्हारा हमारे पास जमा होना चाहिए, हम इनको भेजेंगे। सीखो हज़रत सैयदा हजरा से, जिसने खामद की रजा को कानून समझा और उस पर दिल से राजी रही, उसका देखे निशान जिन राहों से गुजरी। रब कहता है ये मुतीय फरमान है, ये तालिब रजा है, ये खामद की रजा पर मर मिटने वाली है। अल्लामा इकबाल को एक जगह दाद देते हैं, नूरियो खाकी हमा फरमा बरश, नूरियो खाकी हमा फरमा बरश, गुम रजाए दर रजाए शाहरश, नूरी और खाकी जिसके झाड़ू देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते तो पर्दे का हुक्म नहीं था, सरकार ने कोई बात पैगाम के तौर पर देना चाहिए तो मैं देने गया, आगे जनाब सईदा कमरे में नहीं है, चक्की चल रही है। वापस आकर अर्ज किया, यार सुना चक्की खुद ब खुद चल रही थी? कहा खुद ब खुद नहीं चल रही थी, बल्कि जिब्रील चला रहे थे। अंदाजा करें, जो बीवियां अपने खामद की रजा में गुम होती हैं, आसमानी कुदसी भी उनके हामी होते हैं। तो जनाब सईदा हाजरा देखा कि मेरी छातियों में दूध नहीं है, अब बच्चे को दूध किससे पिलाऊं? बच्चा शीरखार है और कोई चीज़ मेरे पास है नहीं जो मैं उसको खिलाऊं। पानी की तलाश में निकली। पानी की तलाश का तरीका यह है, जिस जगह जानवर आते जाते दिखाई दें, आप समझें जानवर, वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, हर जिंदा चीज को हमने पानी से बनाया, पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। इसलिए कॉलोनिस्ट जितने भी कॉलोनी बनाते हैं पहले पानी का बंदोबस्त करते हैं। इस्लामाबाद बना ना, पहले उसके गिरदा गिरी डैमें बनाई गई ताकि इस्लामाबाद के जो बाशी हैं वो पानी की सहूलतें पा सकें। अब एक नया डैम बन रहा है चढ़ा के मकाम पर, फरवाला दर्रा जो है ना, जो कखरों कहते हुकूमत में दारुल खिलाफा था, वहाँ एक डैम बन रहा है जिससे हमारे पास से गुजरने वाला जो दरिया है, दरिया स्वां, उसका पानी और घट जाएगा। इस तरह भाई साहब ने जरा दानिश देखिए कि किस तरह फैसला किया कि पानी कहाँ तलाश करूं, जिधर जानवर आते जाते दिखाई देंगे उधर पानी होगा, या परिंदे आते जाते होंगे। पहाड़ी पर चढ़ के देखने का मतलब अगर जमीन पर चलने वाले जानवर हुए तो भी नजर आएंगे, और अगर कहीं परों से उड़ने वाले परिंदे आए जाएंगे तो भी नजर आएंगे। तो आपने वो उसी बेचैनी में कभी दौड़ के इधर जाती है, कभी दौड़ के सफा से आपने उस जगह सही शुरू की है, दोबारा सफा पे आएंगे तो एक चक्कर शुमार होगा। जो जनूब की तरफ है वो मरवा है और जो शुमाल की तरफ है वो सफा है। तो जैसा आप मरवा में पहुंची तो बार बार आप बोल बोल के देखती हैं, पता नहीं मेरे बच्चे को कोई दरिंदा न खा जाए। तो देखा बेटा एड़ियां लग रहा है उस बेचैनी के आलम में। तो जनाब सईदा दौड़ के आई, मेरा बेटा शायद दम तोड़ रहा है। जब वहां आई तो देखा पानी की नहरें उबल रही हैं। कुदरत कामिला ने हालात की जुबान से ये वाजे किया, ए हाजरा याद रखो, पहाड़ों की चोटियों तक से लेकर और वादियों की तह तक जो नेमत ना मिले, दौड़ लगा लगा के बंदे थक जाए, नबी के कदमों से लिपट जाओ तो वो नेमतें मिल जाती। तो अब जनाब सईदा का वो अमल एक शार बन गया। शार शईरतुन की जमा है। शईरतुन की जमा, इसके माना क्या है? निशानी। निशानी उसे कहते हैं जिसे देखे कोई याद आए। देखे पहाड़ी याद रब आए, क्या ताल्लुक है? हज़रत गौस सकलैन ने इसकी बड़ी खूबसूरत तौजीह की है। किसी शख्स ने आपसे पूछा अल्लाह के वलियों की, अच्छे बंदों की निशानी क्या है? फरमाया जिस रास्ते से गुजर जाएं उस रास्ते से गुजरते हुए भी याद खुदा ताज़ा हो, वो अल्लाह के सही बंदे होते हैं। पूछने वाला भी दानिश्वर है। वो कहता है जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत है, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आए। आपने उन्हें देखा जाए नहीं कहा, बल्कि जिन रास्तों से गुजर जाएं उन रास्तों से गुजरते हुए याद खुदा ताज़ा हो। वो बात तो मैंने पढ़ी हुई है, वो तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत है और ये हदीस मौकूफ है। अगर क्यासे सहाबी को कलाम सहाबी में दखल ना हो तो हदीस मौकूफ होकर हुक्म में मरफू होती है। ये बात तदरीब रावी शरह तकरीब नवावी उसके अंदर ये लिखा हुआ मौजूद है। जब कौले सहाबी को, उसके बयान सहाबी का, क्यासे सहाबी को कौले सहाबी में दखल ना हो तो हदीस कहलाने को मौकूफ कहलाएगी, लेकिन हुक्म के एतबार से हदीस मरफू होगी। ये ऐसी हदीस होगी कि सरकार ने अपनी जुबान से फरमाई है, हाथ से वो अमल किया है, पाँव से वो अमल किया है, आपके सामने किसी ने किया, मना नहीं किया। ये माना है, हुक्म में मरफू है। इस दर्जे की हदीस समझिए। वो तो मेरे इल्म में है, हदीस मौकूफ हुक्म मरफू में है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इसका सबूत कहाँ है? आपने ये बात वाज़ेह की कि मैं
लंबा कुर्ता पहन के ही पीर नहीं बना हूं। दरअसल इल्म हत्ता असर तो कतबन 40 बरस तक इसी सहरा में दौड़ लगाई है और मुसीबतें देखी हैं, फाके देखे, तकलीफें देखी हैं, हर तरह के आजार सहे हैं, मगर अपनी जस्तजू से, अपनी तलाश से बाज नहीं आए। और 40 बरस के बाद खानकाई तसव्वुफ में कदम रखा। तो फिर अर्ज वाली बगदाद शहनशाह जिलान फरमाते, जो मैं बात कह रहा हूँ वो इस जगह इन सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से। अल्लामा राजी ने इसका सियाको सबाक बड़ा खूब बयान किया। वो किस तरह, जिसने देखा कि ला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मुर्दा मत कहो जो मौला में कत्ल कर दिए गए। आदमी ने सोचा जिसकी गर्दन उड़ गई, जिसका जनाजा पढ़ लिया गया। हज़रत इमाम शाफी शहीद के जनाजे के हामी नहीं है, हमारे इमाम अबू हनीफा और बाकी आइमा जमहूर का मज़हब है उनका जनाजा पढ़ा जाए। कहते कि वो क्यों कहते हैं कि उसका जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम शाफी का मज़हब क्यों है? कहा वो कहते हैं जिंदों का जनाजा नहीं पढ़ते, उसकी जिंदगी कुरान की नस्से सरी से साबित है, वो जिंदा है। लेकिन जमहूर ने कहा सरकार की जिंदगी में क्या शक है, सरकार जिंदा है ना, सरकार का जनाजा पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? सरकार का जनाजा पढ़ा गया तो शहीद का जनाजा पढ़ा जाना चाहिए। आगे चल करके वो लिखते हैं इमाम राजी कि तुम सोचते हो कि उसकी बीवी बेवा हो गई, उसने निकाह सानी कर लिया, उसकी जायदाद तकसीम हो गई, वारसों में बांट दी गई, बच्चे यतीम हो गए, उनको ज़कात का माल लेना मुबाह हो गया, उनको फितराना लेना मुबाह हो गया। अला हज़रत क्यास जो मैयत वाले सारे कवायफ है उसकी कब्र बनाई गई, कब्र में उसको दफन कर दिया गया, उसका जनाजा पढ़ लिया गया। जब ये सब काम हो चुके, जिंदा किस तरह समझें? इमाम राजी कहते हैं कि तुम तो उन बंदगाने खुदा को मुर्दा समझते हो जो हमारे रास्ते में जिए और हमारे रास्ते में मरे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के धुएं उड़ा के रब को राजी किया। हम उन जगहों, उन गुजरगाहों को मुर्दा नहीं कहते जिन गाँव से वो गुजर गए। ये दलील है मेरे पास। हज़रत वाली बगदाद का देखा उसूल इस्तिदलाल कैसा हसीन है। और आज के मौका पर फिर ये बात बड़ी यादगारी बात है कि जो इहराम बांध लिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, आदि मोहरम हो गया। अब जनाब कुर्बानी का जानवर उन्होंने तैयार किया जिसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, उसको बुदना कहते हैं। वो गाय है, भैंस है, ऊंट है, ये 3 तरह के जानवर। गाय से मुराद डोमेस्टिक गाय, घरेलू गाय, जंगली गाय वो नहीं हो सकती। जंगली गाय, जंगली भैंस हो उसको आप कुर्बानी में शेर करके कुर्बान नहीं कर सकते। ये जो पालतू गाय है, घर पैदा हुई है और फिर पली है, और ऊंट है, भैंस है। भैंस का आमतौर पर वो नजराना नहीं किया जाता, लोग समझते हैं शायद भैंस कुर्बानी नहीं लग सकती। भैंस भी कुर्बानी लग सकती है, गाय भी कुर्बानी लग सकती है, ऊंट भी। इसमें एक आदमी अगर एक जानवर करना चाहे तो भी कर सकता है, लेकिन इसमें 7 शरीक हों तो वो 7 अपने हिस्से मुकर्रर कर सकते हैं। कुरान मजीद ने इस पर तबसरा किया है, मजा ही आ जाता है दीन को समझने के बाद। कुरान कहता है सूरह हज के अंदर है, वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह व फीहा खैर, हमने तुम्हारे लिए बुदना को अल्लाह की निशानी बनाया। सफा मरवा अल्लाह की निशानी है ना, कहा वो तो एक वलिया थी, उनके जरिए से बनी। अब तुम वो हज करने जा रहे हो, तुम्हारी औलाद का इससे पहले कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज तुमने बुदना तैयार किया है, राय मौला में एक जानवर कुर्बान करना चाहे, उस तरफ इसका मुंह कर दिया है जिस तरफ सरकार ने कुर्बानी की थी, उन जगहों की तरफ से मुंह किया है, यही निस्बत है। इसको हमने शाइरिल्लाह में से कर दिया है। और सूरह हज की दूसरी आयत है, मैं यज़िम शाइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है ये दिल का तकवा है। जरा अंदाजा करें, आपने नमाज पढ़ी है, ये अमल का हाथ का तकवा है, पाँव का तकवा है, बदन का तकवा है। आपने ज़कात दी है, ये माल का तकवा है। आपने उशर दिया है, ये आपकी कमाई का तकवा है। मगर दिल का तकवा का अल्लाह के बंदों की जो यादगारें हैं उनकी ताज़ीम करना, ये दिल का तकवा है। हमने देखा है एक मरतबा में तकरीर के लिए जा रहा था कोई घटा में, तो थोड़ी देर के लिए मैं रुका वहाँ चड़ोही में। चड़ोही एक पहाड़ के ऊपर एक मैदान है, आजकल वो तहसील है। उस पहाड़ के ऊपर काफी लंबा चौड़ा मैदान है, वो शहर बन गया है। उसके ऊपर एक मीनार की तरह पहाड़ी खड़ी है जिसको पंजन कहते हैं। मियाँ साहब ने सैबुल मुल्क वहां बैठ के लिखा। बहुत सारे आरिफीन उस जगह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, ये उनको बेहतर पता होगा वो कौन सी मंजिल है जिस पर रुके हुए हैं, वहां जाने से वो मंजिल चल पड़ती है। तो ये मैं याज़िम शाइर अल्लाह है। मियाँ साहब आर पे खड़ी फरमाते हैं, कबर मेरी जे पंजन होंदी दुनिया गल्ला कर दी, कबर मेरी जे पंजन होंदी दुनिया गल्ला कर दी, डाढ़े कोल मोहम्मद बख्शा जिंद निकारी डर दी। ये जो दूसरा मिसरा है इसका मतलब समझना है, मदीना शरीफ हजूर की बारगाह में खड़े हैं, ये मान मेरी समझ में ये बात आई है कि सारे लोग जाते हैं। हर एक आदमी से पूछो कहाँ जा रहे हो, कहा सरकार की बारगाह में जा रहा हूँ, सरकार की कब्र की ज़ियारत करने जा रहा हूँ। दौरे हाजिर का एक शत्रु बेमुहार तबका है, वो कहते हैं वहां सरकार की मस्जिद की नियत करके जाना चाहिए, सरकार की कब्र की नियत करके नहीं जाना चाहिए। कैसा घटिया इंसान है कि सरकार की मस्जिद का कायल है, सरकार की कब्र का मुनकिर है। अंदाजा करें, सरकार ने फरमाया ज़ारा नहीं बाद मुहाती का नमाज ज़ारा नहीं फिर याती, जिसने मुझे मरने के बाद मेरी ज़ियारत के लिए आया
उसने ऐसा किया जैसा मेरी जिंदगी में मुझसे मिलने के लिए आया था। मैं उसकी मुलाकात को तस्लीम करता हूँ। एक बड़ा खूबसूरत एतराज किया जाता है मुनकरों की तरफ से। वो कहते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये नहीं कहना चाहिए, ये मकरूह है कि मैंने सरकार की कब्र की जियारत की। क्या कहना चाहिए? वो इसे ये इस्तेदलाल करते हैं कि जाना ही नहीं चाहिए, जियारत करनी ही नहीं चाहिए, कि जब कहना मुमकिन है तो करना क्यों दोस्त है। उसकी वजह बतलाई है हज़रत इमाम खसाइस मुर्तज़ा के अंदर लिखा है मुहद्दिसीन ने, और किताब शिफा फी तारीख हुकुल मुस्तफा के अंदर हज़रत इमाम यकसवी ने लिखा है कि ये इसलिए उन्होंने कहा है कि ज़ियारत मुर्दों की होती है, उसको कहना चाहिए सल्लम तो अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सरकार को सलाम अर्ज किया है। ये जो कहते मैं सलाम करने गई थी, मैं सलाम करी थी बुढ़ियाँ, मालूम है ये मुसलमानों की बेटियां हैं, इनको पहले की बोली समझ में है फलां जगह सलाम। हमारे यहाँ बाव इजाद के मज़ारों पर लोग आते हैं, वो ये नहीं कहते ज़ियारत करने, वो सलाम करने आए, और जो सलाम की मन्नत मान देते हैं कहते मैं सलाम सुखिया है, यानी मन्नत के तौर पर माना हुआ है, जाते हैं सलाम के लिए। तो अब जनाब ये जो बुदना मुकर्रर हुआ है, कुरान मजीद ने कहा हमने तुम्हारे लिए इसको शायर अल्लाह में से कर दिया है। यार उसको वजू कराया है, उसको गुस्ल कराया है, उसको पाक किया है, गोबर लगा हुआ है, पेशाब लगा हुआ है, सिर्फ आपने उसके गले में चीथड़ा डाला है या कोई जख्म का मामूली निशान किया है, इस पहचान के लिए कि ये कुर्बानी का जानवर कोई से न छेड़े। अब बतलाएं कि जिस वक्त कुर्बानी के जानवर की निस्बत मिना की तरफ हो गई, उस वक्त उसकी हैसियत बदल गई, उसकी ताज़ीम वाजिब हो गई। जो औलाद रसूल है, बताएं वो सरकार का जुज़्वे बदन है, ये मनसूब नहीं हुआ, ये जुज़्वे बदन है। जुज़ुल मरे फी माना नफ्से ही, अदाय की इबारत है, किसी शख्स के जुज़्व का वही हुक्म होता है जो कुल का हुक्म होता है। अब बतलाओ तुम्हारा मजहब कहाँ है? ये हज का मौका जब आएगा सुन्नियत निखर निखर के सामने आएगी। अब हम औलिया अल्लाह के मज़ारात को शायर अल्लाह कहते हैं, पूछो क्यों? जिस जगह भाई हाजरा ने पाँव लगाए हैं वो शायर अल्लाह में से हो गई, तो जिस जगह भाई हाजरा साहब